Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which will help you not just in your exam but also in your daily life as well, because people often get confused in these topic. And it's also, of course, it's for your exam only. This video will be helpful for your exam to make a clarity about this topic, because I've tried to make it as simple, and I'm going to explain it in a easier way as well, so that you'll get the confusion get away from you, and you'll be confident enough to answer these questions when coming up in your exam, and to anybody if they are asking you in oral as well. So let's understand the concepts, what are these and what are the similarities in between, or whatever it is. So let's see that. देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, which I have written in a short form as COM, Council of Minister versus Cabinet Ministers. So these are the topics, these are the two kind of group, yeah, or rather you should say not a group, because Council of Minister, is a group of ministers, but cabinet is an individual minister which is really powerful, and highly experienced person member are included in cabinet of ministers, right? So basically what I'm trying to say is that we will be seeing the topic council of minister versus cabinet, that what are these minister, how they are different from one another, what are the role they play, and what are the similar kind of activity do they perform, what are their tenure period, what are their rights, what are their power, where they work either in union or in state. So whenever I'm saying union, don't get confused. For central government we often used union, central is one and the same thing, or rather you can also say national, right? Whereas state government stand for state itself, like a particular state like Bihar, Punjab, Odisha, and many more, right? So if you'll see, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 70 से 80 मेंबर्स होते हैं। कितने? 70 से 80 मेंबर्स। वेरस कैबिनेट के अंदर 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। तो आप इसी चीज़ से समझ गए होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट से साइज़ में बहुत बड़ा होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से साइज़ में उतना ही छोटा होता है, राइट? सो पहला डिफरेंस होता है इट्स साइज़, इन विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ larger whereas cabinet ministers are smaller, right? इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन, ये सारे पॉलिसी डिसीजंस को लेते हैं, आई एम सेइंग, राइट? दे टेक पॉलिसी डिसीजंस, वेयर एज रियल डिसीजन मेकिंग पावर कैबिनेट के हाथ में होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मेकिंग पावर, real decision making power is in the hand of cabinet. So here cabinet is the real what? Minister. So जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली दे हैव द रियल डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब डिसीजन मेकिंग का रियल पावर कैबिनेट के पास होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं, राइट? इसके अलावा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, कंप्राइजेस कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। मैंने आपको पहले बताया था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही ये पार्ट होता है। सो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, many more ministers are included in council of minister, whereas cabinet minister is a individual ministry which is having a cabinet minister, right? PM may और may not consult other minister, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, क्योंकि हेड कौन होते हैं हमारे? पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट ही किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जब पीएम उनको एडवाइस करते हैं। तो इनका हेड जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कर सकता है? वो कंसल्ट कर भी सकता है, मतलब दूसरे मिनिस्टर को बता भी सकता है कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, नहीं भी बता सकता। इट्स अप टू द मर्सी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कलेक्टिवली रिस्पॉन्स टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे, अब ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलग जा रहा है, डिप्टी मिनिस्टर अलग जा रहा है, नहीं, ये सारे कलेक्टिव होके
लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सारे एज अ ग्रुप काम करते हैं, इंडिविजुअल काम नहीं करते। वेयर कैबिनेट मिनिस्टर में आपके पास सेंस की बात है कि अलग से काम करता है, 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही वो पार्ट होता है। बट कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में भी बहुत पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। या नेक्स्ट इज़ अदर देन जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कंसल्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है अपने मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अदर देन बिलो द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो चाहे और किसी मिनिस्टर से सलाह ले या ना ले, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह लेते हैं, बिकॉज इन कैबिनेट मिनिस्टर हाईली एक्सपीरियंस पीपल आर कंसिडर्ड। तो याद रखिएगा कि वो सलाह पीएम किसी और मिनिस्टर से ले या ना ले, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से ज़रूर लेते हैं, कंसल्ट ज़रूर करते हैं उनको। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, तो ये जल्दी फ्रिक्वेंटली वीकली नहीं मिल पाते, रेयरली मीट करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम बाद मीट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ही नीड होती है तभी ये लोग मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा मोर ऑफ अ कलेक्टिव बॉडी, जाहिर सी बात है कि इसमें मोर देन 1 मिनिस्ट्री है, तो ऑफकोर्स इट्स अ कलेक्टिव बॉडी, इट्स अ कॉमन सेंस, राइट। एंड लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही लेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? पार्लियामेंट को। इसके अलावा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, पर किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। और आर्टिकल 74 and 75 of Indian Constitution talks about Council of Ministers, and Council of Minister is a constitutional body. Keep that in mind. Whereas Cabinet Minister now itself is a constitutional body, but it got named as constitutional body through an amendment, which is 44th Amendment, and अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 74 एंड 75 में है इसके बारे में। वेयरएज कैबिनेट मिनिस्टर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, 1978 में इसको आर्टिकल 352 के अंदर लिख कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, तो 15 to 20 मेंबर्स होते हैं और ये जस्ट इम्प्लीमेंट दोज डिसीज़न, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड डिसीजंस को ही जो इनके हित में होता है या जो इनके जितना पावर इनको दिया गया उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। एंड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसके अंदर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो दे होल्ड वीकली मीटिंग्स। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज़ में बहुत बड़े होते हैं तो वो बहुत रेयर मीट करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी नहीं मिलते। वेयरएज कैबिनेट छोटा होता है तो वो हर वीकली हर सप्ताह मिलते हैं, हर वीक मिलते हैं। आई होप यू गाइज नो व्हाट वीकली मीन्स, दैट आफ्टर एवरी 7 days, राइट, सो दे मीट वीकली। इसके अलावा डिफेंस, फाइनेंस, होम, ऐसे सेक्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा होल्ड होता है, काम करते हैं ये लोग। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो ट्रस्टेड कलीग होते हैं पीएम के, क्योंकि इसमें हाईली एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी और मिनिस्टर से कंसल्ट करे या ना करे, कैबिनेट मिनिस्टर से ज़रूर कंसल्ट करते हैं, इसीलिए इनको ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड कलीग भी कहा जाता है। किसका? प्राइम मिनिस्टर का। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबसे सिंपल सी बात पहले तो ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करें प्राइम मिनिस्टर तो इसको भी करेंगे, क्योंकि उसका एक ब्रांच ही है कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाकी मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर को थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाईली एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो थोड़ा उनको भी इज्जत वगैरह देना ज़रूरी है ना, इसलिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये स्मॉलेस्ट बॉडी होती है जो लगातार मिलती रहती है।